Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a great honor for me to introduce and welcome our chief guest, Mrs. Al-Haja Amina Sultana. Please give a big round of applause for her. She is a British Council Coordinator of Al-Hakama International School, Jeddah. Please give a big round of applause for such an inspirative and hardworking personality. I would like to share with you all about her contribution to our institution. She did a big support during the foundation of Crescent Group of Institutions in 2003, which means a lot for us. We are very thankful to you, ma'am. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O Allah, give us in this world good and hereafter good, and protect us from the punishment of fire. Ameen. Allah subhanahu wa ta'ala हमारी इस कोशिश को कामयाब करे. I, Mrs. Sayyada Sabah Nusrat, heartily welcome you all on our 16th annual day celebration. It is the blessing of our parents and Allah's mercy that we stand here today and are celebrating our 16th successful annual day celebration. Now let's start the celebration with the beautiful verses of Quran e Masjid, Surah Fajr by 9th class girls. I seek refuge in Allah from Shaitan the outcast. Bismillahirrahmanirrahim. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. Suratul Fajr Makkiyah. सूरह फज्र मक्के में नाजिल हुई. Surah Fajr is belonged in Makkah. Wal Fajr, फज्र की कसम. By the dawn. Walayalin Ashr, और 10 रातों की. And by the 10 nights. Wash-Shaf'i wal Watr, और जुफ्त और ताक की. And by the even numbers and the odd. Wal-Layli Iza Yasr, और रात की जब जाने लगे. And the night when it passes. Hal fi zalika qasamul lizi hijr, बेशक ये चीजें अक्लमंदों के नजदीक कसम खाने के लायक है कि काफिरों को जरूर अजाब होगा. Is they not in all that and not sufficient for one of perception? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया. Have you not considered how your Lord dealt with Ad? Irama zatil imad, जो इरम कहलाते थे दराज कद. With Iram who had lofty pillars. allati lam yukhlaq misluha fil bilad, ये लोग मुल्कों में सरकश हो रहे हैं. The like of whom had never been created in the land. wa samud allazina jabu sakhra bil wad, और समूद के साथ क्या किया जो वादे कुरा में पत्थर तराशते और घर बनाते थे. And with Thamud who carried out the rocks in the valley. wa fir'auna zil autad, और फिरौन के साथ क्या किया जो क़ैमिया और मैकाए रखता था. And with Pharaoh, owner of the stakes. allazina taghaw fil bilad, ये लोग मुल्कों में सरकश हो रहे हैं. All of whom oppressed within their land. فأكثروا فيها الفساد, और इनमें बहुत सी
खुराबियाँ करते हैं and increase there in the corruption. فصب عليهم ربك سوط عذاب तो तुम्हारा परवरदिगार इन पर अजाब का कोड़ा नाजिल करेगा। And your Lord given us courage of punishment. إن ربك لبالمرصاد बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है। Indeed, your Lord is in observation. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرم فيقول ربي أكرمن इंसान अजीज मखलूक है। जब इसका परवरदिगार उसको आजमाता है, उसको नेमत बख्शता है, तो कहता है, हाय मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी। But as for man, when his Lord tries him and thus generous to him, he says, my Lord is honored me. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن मगर जब दूसरी तरह आजमाता है तो उस पर रोजी तंग कर देता है, तो कहता है, हाय मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। But when he tries and restricted his provision, he says, my Lord is humiliated me. كلا بل لا تكرمون اليتيم नहीं, बल्कि तुम लोग ही यतीम की खातिर नहीं करते। No, but you do not honor the orphan. وتأكلون التراث أكلا لما और ना मिस्किन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो And you do not encourage one another to feed the poor. ولا تحاضون على طعام المسكين और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो And you consume inheritance, revolving it all together. وتحبون المال حبا جما और माल को बहुत ही अजीज रखते हो And you love wealth with immense love. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا तो जब जमीन की बुलंदी कूट कूट कर पस्त कर दी जाएगी No, when the earth has been leveled and pounded, crushed. وجاء ربك والملك صفا صفا तो तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कतार बांध आओ मौजूद होंगे And your Lord has come, and the angels rank upon rank. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى तो उस दिन दोज़ख हाजिर की जाएगी तो इंसान उस दिन मुतनबा होगा, मगर अब इंतबा से उसे कहाँ फ़ायदा मिल सकेगा। And brought within view that day is hell that day, man will remember, but what good to him will be remembrance. يقول يا ليتني قدمت لحياتي वो कहेगा, काश मैंने अपनी ज़िंदगी में जावदानी के लिए कुछ आगे भेजा होता। He says, oh, I wish I had heard some good for my life. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد और ना कोई अल्लाह के अजाब की तरह किसी को अजाब देगा। That day no will punish severely as his punishment. ولا يوثق وثاقه أحد और ना कोई वैसा झगड़ना झगड़ेगा। And no will bend severely as his bending to the evildoers. يا أيتها النفس المطمئنة ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, The righteous will be said, O reassured soil.
ارجعي إلى ربك راضية مرضية. तू अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, वो उससे राजी तू उससे राजी. Return to your Lord with peace and pleasing to him. فادخلي في عبادي. तू मेरे मुमताज बंदों में शामिल हो जा And enter among my righteous servants. وادخلي جنتي. और मेरी बहशत में दाखिल हो जा. And enter my paradise. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. Goodbye. MashaAllah. Before moving ahead to the function, I would like to present a brief annual report of academic year 2018-2019. We have celebrated Independence Day to rememorize the struggle of our freedom fighters for our freedom. We have also celebrated the Teachers' Day on 5th September to realize the students, the efforts of our teachers. Before moving ahead, I would request our correspondent, Mr. Sayyid Anwar sir, to ask the question to the parents. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चन आंसर्स प्रोग्राम के लिए मैं बताया था. आप लोग रेडी हैं? यस और नो? कोई भी आवाज नहीं दे रहे पेरेंट्स में से. सिर्फ पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम ये. फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, उसका जो भी आंसर दे रहे अपना हाथ उठाइए. टीचर्स के हाथ में माइक है, वो माइक लेकर आएंगे. माइक में आंसर दिए से वाले का ही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा. नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन हैदराबाद में कब है? टीचर माइक हाथ. 11 अप्रैल. वेरी गुड. आइए सामने आइए सर. थोड़ा लाइट म्यूजिक. मैं आमिना मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ. थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिसेंट हाई स्कूल इसका इस्टेब्लिश डेट किसको याद है? डेट और ईयर हम लोग काफ़ी बार जिक्र किए. थोड़ी देर पहले मैंने भी जिक्र किया था. इस्टेब्लिश ईयर और डेट. हाथ उठाइए. टीचर माइक लेकर आएंगे आपके पास में. 2003. डेट मंथ. डेट और मंथ. March 2003. नो. काफी लोगों को पता है, बार बार कहा गया है आज भी फंक्शन शुरू होने से पहले भी. बैठाइए. कोई नहीं. थोड़ा सा जोर डालिए. 2003 तक गए आप लोग. थोड़ा जोर डालिए. 21 पे 23. नो मैम. थोड़ा करीब गए मगर अभी भी थोड़ा दूर है आप. जून 3rd.
किसी को नहीं पता? June 3rd, 2003. नहीं। किसी को नहीं पता? इधर साइड नूरिन, इधर साइड पूछिए। माइक बताइए, कोई जेंट्स की तरफ भी किसी को माइक देकर भेजिए। Thirty-three. 2003. 33 का मंथ नहीं होता मैडम। March. 33 March. नो मैडम, 31 तक मंथ होता है। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सत्तार साहब यूथ लीडर आए हैं, जोरदार क्लैप कीजिए सत्तार साहब के लिए। थोड़ा लाइट म्यूजिक चलने दीजिए पारी में। हमारे सत्तार साहब का भी हमारे साथ इनॉग्रेशन के जब से है। अब इनॉग्रेशन की डेट आपको तो याद नहीं आ रही, मैं ही बता देता हूँ। 31 मई 2003 सत्तार साहब की मौजूदगी में इनॉग्रेशन हुआ था स्कूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. When was Crescent Girls Junior College established? Crescent Girls Junior College. Year, inauguration, date and year. 8 April 2011. नहीं है, नहीं है। No. Anybody else? Eight April 2011. No. Two 2012. No. 2005. नो। हमारे कृष्ण ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन साहब आ चुके हैं। यासीन सर का जोरदार क्लैप्स के साथ स्वागत कीजिए। सर, मैं यासीन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पे। मैं काफी देर से यासीन सर का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक भी याद नहीं है किसी को कॉलेज की डेट। जल्दी जल्दी भाई, क्वेश्चंस बहुत है, आंसर्स करने वाले ही नहीं मिल रहे हमको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्रेजेंट होम मिनिस्टर का नाम क्या है? तेलंगाना के जो न्यू होम मिनिस्टर है। माइक में बोलने वालों को आंसर लिया जाता है। होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली। Venkaiah Naidu. नहीं, हमारे साहब ने बहुत बेहतर और सही आंसर दिया है। जोरदार क्लैप कीजिए मोल साहब के लिए। आइए मोल साहब स्टेज पे आइए प्लीज। मैं सिकंदर माशूक की तरफ से गुजारिश करूंगा 2 कदम स्टेज पे आइए। तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी मिला। ऐसी आंसर जल्दी मिले तो अवार्ड ज्यादा है, मगर आंसर ही नहीं मिल रहे हमको उतने। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब रिसर्च का प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करेंगे सभा मैडम। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जिसके मायने हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं।
जो हमारे आज के चीफ गेस्ट है आमिना सुल्ताना, BSc एमएड ब्रिटिश काउंसिल चीफ गेस्ट। मैं सभा मैडम से गुजारिश करता हूं कि उनको स्टेज पे ले आए। जोरदार क्लास से आमिना सुल्ताना का स्वागत कीजिए। मैडम का हम स्वागत करते हैं अपने इस क्रिसेंट के एनुअल डे सेलिब्रेशन में। वी वेलकम यू टू दिस ग्रैंड ओकेशन मैम। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर मोस्ट डियरेस्ट लीडर एंड द फ्रेंड मिस्टर सिकंदर माशूकी सर, प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट। अनवर साहब से गुजारिश है कि वो सिकंदर माशूकी साहब को स्टेज पर लाएं। अभी नेक्स्ट हमारे दरमियान नौजवानों के बहुत ही बढ़ते हुए लीडर जनाब सत्तार साहब मौजूद हैं, यूथ आइकॉन। मैं सत्तार साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। अभी मैं मोहम्मद बावजीर साहब करस्पॉन्डेंट आइडियल स्कूल से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। मैं आली जनाब सैयद इमामुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। आइए मोहम्मद बावजीर साहब करस्पॉन्डेंट आइडियल। मैं सैयद हसन अली साहब से गुजारिश करता हूं कि इससे पे तशरीफ फरमाएं। मैं इब्राहिम खलील साहब से गुजारिश करता हूं कि इससे पे तशरीफ फरमाएं। इब्राहिम खलील साहब मजलिस के फाउंडर मेंबर्स में से आते हैं, काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। आपके वालिद भी शहर हैदराबाद की बहुत सी खिदमत अंजाम दिए हैं। So our almost the guest of honors has arrived to this occasion. On the behalf of Crescent Group of an Institution, I'd like to welcome all of you to this grand annual day function. अभी मैं फजीलत टीचर सीनियर मोस्ट टीचर है जो हमारे क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अलहाज मिसेस आमिना सुल्ताना मैम जो ब्रिटिश काउंसिल भी हैं, उनका स्वागत करें बाय प्रेजेंटिंग ए फ्लावर बुके। मैम
थैंक यू मैम। अब मैं हमारे स्कूल के अनवर साहब, थैंक यू। अभी मैं अभी मिसेस सबा अनवर से गुजारिश करता हूं कि जो हमारे क्रिश्चियन गर्ल्स जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं कि वो जनाब सिकंदर माशूक़ी साहब को गुलदस्ता पेश करें और उनका वेलकम करें। सिकंदर साहब। वी फरहीन टीचर, फरहीन टीचर से गुजारिश है कि वो सत्तार साहब का वेलकम करें बाय प्रेजेंटिंग ए फ्लावर बुके। Noreen teacher, please come and present a bouquet to Mohammad Bawazir Saab, correspondent, Ideal School. आइए। शाइस्ता टीचर, प्लीज प्रेजेंट बुके to Sayyid Imam Hussain Uddin Sahab. No. Arsha teacher to Sayyid, presenting a flower bouquet to Sayyid Hassan Sahab. Noshin teacher, presenting a bouquet to Ibrahim Khalil Sahab. Sabha ma'am, please come. We are having very nice personality sitting on the dais. We would like to felicitate Mrs. Alhaj Amina Sultana. Ma'am, can you please just come here? मैं थोड़ा सा इनका तारुफ कर दूं। मैडम जो हैं वो BSc M.Ed हैं और ब्रिटिश काउंसिल कोऑर्डिनेट हैं ये अल हुकामा इंटरनेशनल स्कूल जिद्दा सऊदी अरब में, और बहुत सारे एजुकेशनल की जो फील्ड है उसमें बहुत सारे कारनामे हैं आपके। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैडम का स्वागत करिए। और अभी सबा मैम और फजीलत मैम जो है इनको फेलिसिटेट करेंगे, शाल पोशी करेंगे मैडम की। अनवर साहब प्लीज ज्वाइन। फजीलत टीचर और मोमेंटो पेश करेंगे। अब मैं हमारे और एक हरदल अजीज़ मेहमान खुसूसी जनाब सिकंदर माशूक़ी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए। वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट दिस पर्सनालिटी। ये कोई तारीफ़ के या तारुफ के मोहताज नहीं है। आप तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन के एडवाइज़र हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और अल माशूक़ी प्रेस के चेयरमैन व डायरेक्टर हैं।
मैं मोहम्मद बावज़ीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सिकंदर माशूक़ी साहब की शाल पोशी करें और मोमेंटो पेश करें। सिकंदर माशूक़ी साहब काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं हमारे अपने हैदराबाद, शहर हैदराबाद की। बहुत सारे इनके सोशल वर्क्स है, कई कारनामे हैं इनके। अब मैं जनाब सत्तार साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए। वुड लाइक टू फेलिसिटेट हिम। ये यूथ लीडर है और बहुत ही बेहतरीन सोशल वर्कर है। आपके भी बहुत सारे जो है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के कारनामे हैं। मैं अनवर साहब से और मोहम्मद बावज़ीर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो सत्तार साहब की शाल पोशी करें। आई वुड लाइक टू, आप तमाम जो भी यहाँ पर हाज़रीन हैं, औलियाए तलबा हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक ज़ोरदार तालियों का राउंड हो जाए हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके इस्तकबाल के लिए। ओके राइट, थैंक यू। अभी मैं जनाब सत्तार साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इस मौके पर अपने तासुरात को बयान करें। जनाब सत्तार साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डैश पे तशरीफ़ फरमा मौज़िज़ान मेहमान और इन मासूम बच्चों के वालिदैन जो यहाँ पर मौजूद है, और नौजवान साथियों और हमारे क्रिसेंट स्कूल के प्रिंसिपल साहब सैयद अनवर साहब और हमारे न्यू आइडल स्कूल के मोहम्मद बावज़ीर साहब और तमाम लोगों को तहे दिल से मैं सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दुनिया के तमाम तर लोग तरक्की पाने की खातिर अपने इस देश को छोड़कर मेहनत मजदूरी करने के लिए कोई दुबई जा रहे हैं, तो कोई सऊदी जा रहे हैं, कोई लंदन जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन आज इस देश को हम जैसे इन मासूम बच्चों की परवरिश करते हुए इनको तालीम देकर इस देश को आगे लेके जाने के लिए अगर हमको सबसे पहले अगर कोई चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो वो है तालीम। तालीम बहुत अहमियत है, क्योंकि कुरान में इसका जिक्र भी आ चुका है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने तुमको आलिम बनाया, इल्म सिखाया। यानी कुरान की वो पहला लफ्ज़ जो कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही उतरी, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के मानों से उतरी। यानी इससे हमको ये नसीहत मिलती है कि हमको पहले तालीम के तरफ राग़िब होना चाहिए और तालीम हासिल करना चाहिए। इसीलिए एक हदीस पाक का मफ़हूम है, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। आज कुछ लोगों के जहनों में एक ऐसा एक मंसूबा बैठा हुआ है कि हम इस अक़लियत के मुसलमानों को तालीम से दूर करें ताकि वो ज़िंदगी में कहीं पर भी फलाह व बहुत ना पाएँ, ना तरक्की करें। लेकिन आज तालीम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहला हमको अगर कोई गोद मिलता है तो माँ का मिलता है, उसके बाद अगर हमको कोई गोद मिलता है तो उस्ताद का मिलता है, असातिज़ा का मिलता है। इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप और जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है, तो उस्ताद भी जो ही वही माने रखते हैं, माँ बाप का दर्जा रखते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से, उन माँ बाप से मैं अपील करता हूँ कि आप
अपने ज़िंदगी के 24 घंटे में आप अपने बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दें, एक मकसद बनाएं, एक मकासद बनाएं, ताकि आपका बच्चा आगे चल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कहीं IPS बने या IAS बने, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है। और उस्ताद का कहना यह है कि उस्ताद सुबह 9 बजे से अगर शाम में 3 बजे तक बच्चे को अगर तालीम देता है, तो शाम में 3 बजे से शाम में 8 साढ़े 8 तक सोने तक माँ की गोद में तालीम मिलती है। इसीलिए आप लोगों को चाहिए। और एक बात, मैं हाल ही में जो है 16 तारीख को न्यू आइडल स्कूल के जो है एनुअल डे में जब मैं उर्दू मस्कन गया था, वहाँ पर मैंने बहुत से प्रोग्राम दिखा मोहम्मद बावजीर साहब के स्कूल से, और काफ़ी बच्चों में जो है अरबी तालीम की जो जुस्तजू देखी। कुछ बच्चे लोग जो है आयतल कुर्सी पढ़ के सुनाए, कोई बच्चे लोग जो है कुरान का मफहूम बता रहे थे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यानी हकीकत में दुनियाई तालीम के साथ साथ अगर हमारी दीनी तालीम हो जाए तो यकीनन उसकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी, और माँ बाप की इज्जत करना सीख जाएंगे। दुनियाई तालीम सीख कर कोई साइंटिस्ट बन जाता है, लेकिन उसका कल्ब मुतमईन नहीं है। एक होता है नफ्से एक होता है नफ्से अरामा, एक होता है नफ्से अवामा, एक होता है नफ्से मुतमईन। यानी अगर कोई नमाज भी पढ़ते हैं, अगर हमारा कल्ब मुतमईन नहीं होता तो हमको बेचैनी होती है कि हम फजर की नमाज में जल्दबाजी करें या ज़ोहर की नमाज में जल्दबाजी करें। इसीलिए तालीम का हासिल करना और तालीम का हासिल करते हुए अपने दिल को मुतमईन करना, उसके लिए दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे अनवर साहब का और शेख बावजीर साहब का, और यहाँ पर जितने भी मेहमान हैं उन लोगों का, तमाम लोगों का, और उन पेरेंट्स का, उन तमाम लोगों का। तालीम दिलवाइए बच्चों को, आने वाले वक्त का मुस्तकबिल उनका संवारिए। आप अगर मेहनत करते हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा ढकलते हैं, या कोई होटल में काम करते हैं, या कोई छोटी मोटी तिजारत करते हैं, आप अपने शौक को मारकर वो उसके चंद पैसे निकाल कर आप अपने बच्चे को तालीम दिलाइए। इंशाल्लाह आगे चल के वो बच्चा आपके लिए दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी बनेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अदबन माफ़ी चाहता हूँ डैश पे जितने भी मेहमान हैं उन लोगों से भी और हमारे पेरेंट्स से भी, क्योंकि हालात इलेक्शन के हैं। मैं एक पार्टी का वर्कर हूं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता हूं, तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के जो मंशात है, जो सोच है, वो सोच को अगर तोड़ना है तो हैदराबाद पार्लियामेंट के इलेक्शन में जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए और पतंग के निशान को वोट दीजिए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि देखिए तलाक का मामला हो या तलाक सलासा का मामला हो या हमारी शरीयत का मामला हो, इन तमाम चीज़ों में गैर मुस्लिम भाई जो हिंदुत्व जहन रखते हैं और जो उनका दिमाग हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में घुसकर हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई मेरा भाई कोई मजबूरी से या जाहिलियत से अगर कोई मेरी बहन को ज़बानी अल्फाज में तल्लाक 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 बोल देता है तो उसको 3 साल की सज़ा मुकर्रर की जा रही है। क्यों? ये एक फैमिली को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर वही तरीका अगर हम और आप बैठकर कोई मस्जिद में या कोई एक वेलफेयर सोसाइटी में या कोई शरीयत के मामले को सामने रखकर उस दोनों यानी फैमिली को, उस मियाँ बीवी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और कुरान और हदीस की अगर बात करेंगे तो यकीनन वो जेल से बचेगा और उन दोनों की जिंदगी आगे चलेगी। लेकिन आज हमको कुरान और हदीस से हटाने की कोशिश खुद हमारे मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम कर रहे हैं, जिसका जहन आरएसएस और बीजेपी है। कहीं यहाँ पर अखलाक को गोश्त के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, कहीं पर हाफिज जुनैद को कत्ल किया जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, मेरी बहनों से और मेरी माओं से और ये तमाम
नौजवान जो भी यहाँ पर मौजूद है उन तमाम लोगों को 11 अप्रैल के दिन आप घरों से निकलिए, कड़ी धूप होंगी, परेशानी के हालात रहेंगे, पतंग के निशान को वोट दीजिए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। और अनवर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं क्रिश्चियन गर्ल्स कॉलेज की, और बाज़ाब्ता जो नौजवान बच्चों को गोश पर्दे में रहकर आप तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके स्कूल को और कॉलेज को भरपूर कामयाब करे और दुनिया के हर कोने कोने में एक ही नाम गूंजे, वो है क्रिस्टल कॉलेज और क्रिस्टल स्कूल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह जनाब सत्तार साहब ने हमको उनके बेहतरीन तजुर्बे से कुछ बेहतरीन बातें बताई हैं कि दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम भी बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वक्त की ज़रूरत भी यही है कि हम जो है दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम भी हासिल करें, दोनों भी तालीम का होना ज़रूरी है। इसीलिए जो है हम अक्सर हमारे बड़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग लोग दुआ देते हैं कि तुम्हारी दीन भी अच्छे हो और दुनिया भी अच्छी हो, तो उसकी यही वजह है कि दोनों भी तालीम। अब मैं जनाब सिकंदर माशूक़ी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने मुफीद मशवरों से हमारे औलिया तलबा को और हमको नवाजें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे बुज़ुर्ग मोहतरमा आमिना सुल्ताना सऊदी अरबिया और दिगर मेहमान ने खुसूसी जनाब मोहम्मद बावज़ीर साहब, जनाब यासिन भाई साहब, क्रिसेंट हाई स्कूल के असातिज़ा और खुसूसन डायनामिक एजुकेशन लीडर जनाब अनवर साहब, यासिन साहब, मोहम्मद बावज़ीर साहब और दिगर मेहमान ने खुसूसी जो आज यहाँ पर इस जो महफिल में तशरीफ़ लाए हैं, बहुत खुशी की बात है। और मुझे अक्सर यहाँ जो है आने का मौका दिया जाता है और काफ़ी अरसे से मैं इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ। बोलने वाले तो बहुत कुछ जो है अपनी स्पीचेस में हर साल बोला करते हैं, अहमियत की बातें बताते हैं और तालीम के मेयार को बुलंद करने की बातें बताते हैं, लेकिन उन बातों में एक बात सबसे अहम यह होती है कि मेयार तालीम को किस तरीके से बढ़ाया जाए। ये जो एनुअल डे प्रोग्राम का जो एक सेलिब्रेशन मनाया जाता है, ये सेलिब्रेशन का मकसद सिर्फ बच्चों को प्रोग्राम में नचाकर या बच्चों के मुजाहिरे देखकर फिर या दिगर कोई ऐसी चीज़ें आपको बतलाने का नहीं होता। एनुअल डे में पेरेंट्स को बुलाने का मकसद ये होता है कि सालाना साल तमाम जो स्कूल के असातिज़ा, स्कूल मैनेजमेंट और बच्चों ने जो मेहनत की है उसके मुजाहिरे की तफसीलियात पेश करने का नाम एनुअल डे है। तो ये स्कूल की काबिलियत और स्कूल का जो मेयार तालीम है और स्कूल के अंदर जो बच्चों को दीन और दुनिया की जो तालीम से आगाह किया जाता है, तहजीब से आगाह किया जाता है, अखलाक से आगाह किया जाता है और उनको दुनिया के अंदर किस तरीके से जीना और क्या वैल्यू ऑफ एजुकेशन है और एजुकेशन की कीमत क्या है, पढ़ने से क्या होता है और उसी के साथ ही साथ हमारा दीन इस्लाम है उस पर चलने से क्या होता है, इन चीज़ों के मकासद को उनकी ज़िंदगियों की बुनियाद बनाना बताया जाता है। ये एक अहम बात होती है। तो आज भी वही मकसद है। आज मकसद सिर्फ ये नहीं कि चंद लोग आ गए, कुछ लोग फूल पहन लिए, कुछ चले गए, या फिर पेरेंट्स आए थोड़ा एंटरटेन कर लिए चले गए, ऐसा नहीं। बल्कि एनुअल डे का मकसद ये है कि आप जो बच्चों को अपना कीमती असासा खर्च करके तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, वो तालीम उन्होंने कितनी हासिल की, स्कूल इंतज़ामिया ने उसके लिए कितनी मेहनत की और स्कूल इंतज़ामिया ने उनको कहाँ तक उनके तालीमी मेयार तक पहुंचाया है, वो जानने के लिए आज आपको यहां बुलाया जाता है। तो काफी खुशी की बात है। माशाल्लाह मैं अनवर साहब को और उनके स्टाफ को, जनाब मोहम्मद बावज़ीर साहब को, यासिन साहब को और स्कूल के तमाम
टीचर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। वैसे मैं तकरीबन साल के जो 12 महीने हर स्कूल में हर महीने 2-3 स्कूल वाले तो मुझे बुलाते हैं प्रोग्राम में, मेहमान खुसूसी के तौर पे मैं जाता हूं, बच्चों को प्राइजेस बांटता हूं, स्कूलों में देखता हूं, यानी हर स्कूल वाला मुझे बुलाता है, हर स्कूल को मैं जाता हूं, बल्कि हैदराबाद नहीं तेलंगाना में हर जगह जो है मुझे इज्जत देके बुलाया जाता है। लेकिन बहुत कम स्कूलों को मैं देखता हूं कि जहां पर मेयार तालीम बिल्कुल आला क्वालिटी का होता है, जिसके अंदर मैं एक क्रिसेंट हाई स्कूल को जो है नंबर दूंगा। अनवर साहब मेरे दोस्त थे इसीलिए नहीं, बल्कि ये स्कूल का जो मेयार तालीम है, अतराफ में इतना कंपटीशन के बाद फिर एजुकेशन कंपटीशन, फिर फीस का कंपटीशन, ये तमाम तर चीजें रहने के बावजूद भी एक स्टैंडर्ड तरीके से स्कूल को लेके चलना, और इसके अंदर चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो, चाहे वो किसी भी जो मेयार जिंदगी गुजारने वाले की औलाद हो, उसको एक नजरिए से देखकर उस बच्चे को तालीम देना और उसको दुनिया के अंदर बासलाहियत बनकर निकलवाना, ये स्कूल क्रिसेंट का मकसद होता है, जो हमेशा से मैं देखते आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले पीरियड्स में भी बराबर जो है ये स्कूल इसी तरीके से काम करेगा। मैं दिल की गहराइयों से अनवर साहब को मुबारकबाद देता हूं और पेरेंट्स को भी एक मशवरा देता हूं कि स्कूल इंतजामिया चलता है फीस की वजह से। मैं हमेशा पेरेंट्स को भी एक मशवरा देता हूं और एक 2 मिनट में बात को अपनी खत्म करूंगा मैं, क्योंकि स्कूल की जो जिम्मेदारी होती है वो आपके फीसेस देने से कंप्लीट होती है, क्योंकि स्कूल का खर्चा होता है, टीचर्स का खर्चा होता है, बिल्डिंग का किराया होता है, और स्कूल के अखराजात होते हैं, दीगर अखराजात होते हैं, उसके बाद फिर और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए पैसे का लगाना ज़रूरी होता है। और स्कूल इंतज़ामिया चलता है, पेरेंट्स जो वक्त पे फीस अदा करते हैं उसकी तरफ से स्कूल इंतज़ामिया आसानी से चलता है। अब मिसाल के तौर पर हम लोग कुछ तालीम में पीछे क्यों हैं, खासकर मुसलमान? हमारे पास स्टार टीवी को देने के लिए महाना 300 रुपये हैं, वाईफाई को देने के लिए महीना जो है 700 रुपये होते हैं, हमारे अपने फजूल अखराजात के लिए कम से कम हम 2 से 4 हज़ार रुपये यूं ही महीना बगैर अहमियत देके खर्च कर देते हैं। लेकिन जो इदारा, जो स्कूल, जो चीज़ हमारी आल औलाद को दौलत तालीम से आरास्ता कर रहा, दीन की दौलत से आरास्ता कर रहा, उनके पीछे मेहनत कर रहा, वो स्कूल को हम जो है बदकिस्मती से फीस देने के लिए थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। तो मुसलमानों को सबसे पहले ये अहमियत को समझना चाहिए कि हमारे लिए वाईफाई ज़रूरी है, हमारे लिए मोबाइल का कार्ड ज़रूरी है, या हमारे लिए अपने अखराजात ज़रूरी है, फिर या हमारे लिए वो इदारा ज़रूरी है जो हमारी आल औलाद को तारीकियों से निकालकर इल्म की रोशनी में लाकर उन्हें आदमी से इंसान बना रहा है और दुनिया में जीने का और दुनिया की मार्केट में उतरने के लिए एक हीरा पैदा कर रहा है। तो स्कूल के इदारे को हमें फीस पहले अदा करनी चाहिए। मैं समझता हूं, बिल्कुल मैं जहां भी जाता हूं हर पेरेंट्स को यह मशवरा देता हूं कि अपने अखराजात को रोकें और सबसे पहले जो इदारा आपकी आल औलाद को जेवर तालीम से आरास्ता कर रहा है उनका हक अदा करें, ताकि वो आसानी के साथ आपके बच्चों को दुनिया के अंधेरे से निकालकर दुनिया की रोशनी में लाएं और उनको एक बासलाहियत इंसान बनाकर आपके हैंड ओवर करें। तो बहरहाल आई होप कि आप लोग समझे होंगे। खुशी के साथ मैं मुबारकबाद देता हूं आज के इस प्रोग्राम को मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और जनाब अनवर भाई साहब का, यासीन भाई का, मोहम्मद बावजीर साहब का और क्रिसेंट हाई स्कूल के तमाम स्टाफ का मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले साल और हमेशा इसी तरीके से ये स्कूल कामयाबी के साथ चलता रहे इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जो है अभी सिकंदर साहब ने अपने तजुर्बा की बुनियाद पर कुछ मुफीद मशवरे भी दिए और कुछ बातें भी बताएं। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। तालीम का जो मसला है वो बहुत ही बड़ा मसला है। टीचर बनना, टीचर कोई बोलना, ये बहुत आसान चीज़ दिखती है, लेकिन एक्चुअल अगर आप क्लासरूम में आकर एक पीरियड जो 45 मिनट्स का होता है उस वक्त अगर आप टीचर को देखेंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि टीचर को किन किन मरहलों से गुज़रना पड़ता है। तो बहरहाल ये तालीमी मामला ऐसा है जो आदमी को इंसान बनाता है। ये एक प्रोसेस है which
ट्रांसफॉर्म्स ए मैन इनटू ह्यूमन बीइंग। इंसान को इंसानियत सिखाने का एक प्रोसेस है, एक काम है जो काफ़ी आला काम है और ये टीचर्स करते हैं हमारे, जो काफ़ी काबिल मुबारकबाद है। और हमारे यहाँ जो भी कॉम्पिटिटिव यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि अभी हमारे सिकंदर साहब ने बताया कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर दीनी प्रोग्राम्स भी होते हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हमारे बच्चों के अंदर ख़ुद एतमादी पैदा की जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जाए। उसका मकसद ये नहीं होता कि बच्चा यहाँ पर तकरीर करेगा तो बहुत बड़ा लीडर बनेगा, यहाँ पर डांस करेगा तो कोई फिल्म एक्टर बनेगा, यहाँ पर कोई नात पढ़ेगा, कोई अच्छी दीनी तालीम बनेगा तो कोई वो मौलवी बनेगा, मुफ्ती बनेगा। ये मकसद नहीं होता। मकसद होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा किया जाए, बच्चा 4 लोगों के सामने अपने आप को बोलने की काबिलियत हासिल कर सके। क्योंकि दुनिया जिस सिमत जा रही है, हालात आप भी देख रहे हैं, हालात हम भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम हमारे बच्चों को हर तरह से तैयार करने की कोशिश करते हैं। न सिर्फ कि बच्चे आंसर्स याद कर लिए क्लासरूम में, एग्जाम पेपर लिख लिए, मार्कशीट के ऊपर 90% मार्क्स ला लिए, नहीं, ये तालीम नहीं है। तालीम के साथ साथ बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, कंपटीशन को किस तरह से फेस करना, मुकाबले करने की आदत होना, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है हमारे अंदर। अगर नहीं होंगी, अगर ये चीज़ों की नशोनुमा हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल पे नहीं होगी, तो फिर इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब का वो शेर याद आता है, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो तालीम बेहद ज़रूरी है, समझिए इस चीज़ को। और माँ बाप से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि वो बच्चों के ऊपर नज़र रखें और तालीम की अहमियत को बार बार बताते जाएं। बहरहाल शुक्रिया। अभी आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज के हमारे चीफ गेस्ट अलहाज मिसेस आमिना सुल्ताना मैडम से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपनी तालीमी, बहुत बड़ा तालीमी पस मंज़र रखती हैं, वो काफ़ी तजुर्बेकार लेडी है, काफ़ी कुछ हमको सीखने का मौका मिलेगा उनकी बातों से। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। First of all, I would like to thank Mr. Anwar and Mrs. Sabah and his grandfather, Mr. Imamuddin, Mr. Imam Wahiduddin. He is my uncle. So I would like to thank him first because we have always seen him as encouraging for the education and a very pious man. We respect him. He is over here on the dais with us. So please welcome him over there with a big applaud. He's my uncle over there, and we really appreciate for that. And once again, I would like to thank Mr. Anwar and Mrs. Sabah. And moreover, I will not take much time by talking, as I know you people are getting bored. We have come here to see the young kids on the stage and not us for a long time. But I would like to share some observations which I had seen in educational field. When we were studying, we had all black and white pictures in the books, and the way of teaching was teacher-centered method. But now we have seen that the total method is changed. It is all colorful. Even you can find the books, and the children are being important to everybody over there. So it is totally child-centered method, as the technologies are being changed and improved. Even in the same way, the methodologies are being changed. So I would suggest the children, when we were studying, we had to see where is Bermuda Triangle or Argentina. We were supposed to check the encyclopedias or the teachers
or we would need to go in the society to ask an educated person about that. We were having less source of information, but nowadays, thanks to the technologies, we are having so many advanced technologies and Google with us to find out. So I would humbly request all the students to please use the technologies in a proper manner, in a positive manner, rather than misusing it. Misusing the technologies lead to a disaster. Here, I would request the parents also, please check your children's usage of technology in front of you, because it is leading to many disasters. And now, as we have seen about the technologies, as we people know, education is not only studies or money minting. Education means an overall development of a child. Overall development of a child will be physiologically, psychologically, and mentally. In all the sources, we can measure it by holistic development. These things can be checked over there. So we need to know that school is the second home for the children. As parents and teachers together combine their hands to lead the child in a proper manner, child will lead the nation. Teachers and parents, I'm repeating once again, teachers and children will lead the child's life, and they will lead to the future of a child, whereas child will lead a nation for us. So now, it is the duty of the children also to check what the parents are giving them. They should acquire with hard work. It is just like a horse. Horse can be brought near the water. Water has to be drunk by a horse itself. In the similar manner, you people as students, all of you have to put lot of effort with their dedication to acquire that water. It is like, comparing the two leaders. We people know Abdul Kalam and Hitler. Both were leaders, but we need to follow whom? We have to understand. One was positive, another one you know very well how and who was for what. I need not give the explanation, so I humbly request children, whatever you do, please put your 100% in your subject, in your co-curricular activities, in your skills, your creativity. It is just like a pizza base. I'll compare a pizza base. You will easily understand. Pizza base without the toppings will not be eaten. Similarly, the teachers can give you an education of the pizza base. On the toppings, you people have to put your creativity and your skills over there, and your hard work, dedication, and your sincerity to fill it up and make the pizza wonderful to eat. In the similar manner, you have to put complete effort over there to do the best. So I will not take much time now. I'm going to leave, but I would request once again, children, please don't forget, even our Islam says that we cannot pay back to a person who teaches an alphabet alif. When we cannot pay back an alphabet alif, so we should respect our parents and teachers, because they are the ones who are leading you for your future. If you want a success, you need to put your effort, your dedication, your respect, and your sincerity, your submissive behavior, and your generosity towards your parents and teachers and to the society. Whatever possible, do the best. You are going to be success in your life. Thank you all for listening to me, for the patience, and I thank the people who are on the dais
And I thank Mr. Anwar and Mrs. Sabah once again. Thank you so much. Jazakallah khair. May Allah bless you and may Allah bless Crescent High School for a long, long time and a long life for Crescent High School. Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray! Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable remarks and your valuable things what you have shared with us on the dais. We are so lucky to have you on this occasion. माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बातें बताई आप भी. अभी जो है हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए थे स्कूल में, तो उसके मेरिट सर्टिफिकेट्स देकर बच्चों की हौसला अफजाई की जाएगी. मैं आमिना मैडम और सिकंदर सर से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए. आपको टीचर्स के अवार्ड्स फर्स्ट दिए जाएंगे. फरीन बेगम हेड ऑफिस इंचार्ज से गुजारिश करता हूं स्टेज पे तशरीफ लाएं. जोरदार क्लास होना चाहिए बच्चों के. बच्चे हैं ना यहाँ पे स्टूडेंट्स. मैं ब्रांच सेक्शन इंचार्ज नूरिन सुल्ताना से गुजारिश करता हूं स्टेज पे तशरीफ फरमाएं. नूरिन सुल्ताना. मैं हेड ऑफिस के और एक इंचार्ज फजीलत बानो मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेज पे तशरीफ फरमाएं. निकाल दो. रफत टीचर रफत फातिमा स्टेज पे तशरीफ फरमा. Thank you so much. I heartily thank all the dignitaries for giving us their precious time. Now, moving to our program, I would like to call Mukhit of class 3rd to recite Surah Naba. Mukhit of class 3rd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون
ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا माशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Now we are going to have primary head office primary students सूरा हदीस। चलो पढ़े स्टार्ट करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर इन्ना देना को कौसर वसल्ली रब्बिका वानिका इन्ना शानिका वल अब्तर। जज़ाकल्लाह। जोर से पढ़ना माँ, जोर से पढ़ो। पहले हदीस स्वागतना पढ़ो क्या हुआ? आ रही ना? मुस्बातीस उसका आगे वक्का सोना इसका होता है। चलो ओके।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तावुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह लहब तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्सला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताबूत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्बिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कुरैश। नीलाफी कुरैश नीलाफीम लीलतश शितारी वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी तामनहुम मिन जुयु व आमनहुम मिन खौफ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताबूस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। चार आसमानी किताबों के नाम ये है। पहला तौरेत, दूसरा ज़बूर, तीसरा एंजल, चौथा कुरान मजीद। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताऊद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम वहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तावुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताबूस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह। माँ बाप ये लफ्ज़ जब भी ज़ुबान पे आता है ज़िंदगी थम सी जाती है। माँ बाप की अहमियत जानना है तो ज़रा उन यतीम बच्चों को देख लो जिनके सर पर उनके माँ बाप का साया नहीं होता। वो कितने तड़पते हैं जब भी उन यतीम बच्चों को तकलीफ होती है तो वो किसको सुनाएं, कौन समझेगा, खुशी किससे बांटेंगे, सुनकर कौन खुश होगा इस जलन और हसद वाली दुनिया में। माँ बाप की एक नज़र के लिए तड़प जाते हैं बच्चे, और जिनके माँ बाप दुनिया में हैं वो
वो कदर ही नहीं करते। हमने अक्सर देखा है कई बच्चे शादी होते ही माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाते हैं। बास माँ बाप से बदतमीजी से गुफ्तगू करते हैं। बाज जिनके सिर्फ माँ या बाप जिंदा हैं वो उनके मरने का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह रहम करे। हमने कई बार बड़े बूढ़ों को घर के चबूतरों पे अकेले में बैठकर रोते देखा है। अल्लाह ऐसे बच्चों को हिदायत दे। इसीलिए हमने माँ बाप बड़े अनमोल है नज़्म तैयार की है। तो आइए देखें और कुछ आप और हम भी कुछ सबक सीखें। उम्मीद करती हूँ कि इस परफॉर्मेंस के बाद जो बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते उनमें उनके लिए कद्र जाग जाएगी।